Hello students, I welcome you all to the platform of Infinity Vision. Hope you all are doing well. So today in this video, I will be discussing the detailed solution of JEE Main 2024 physics paper that was conducted on 31st January of morning shift. So as you can see on the screen behind me. So let's start. So this is the first question of section A, MCQ type. The question says that the parameter that remains the same for molecules of all gases at a given temperature is. The options are given. The options are given: kinetic energy, momentum, mass and speed. So as you all know that average kinetic energy is given by 3 by 2 kBT. This is the average kinetic energy per molecule, translational kinetic energy per molecule in case of an ideal monoatomic gas. So immaterial of the nature of the gas, you can see that all the parameters are constant except this absolute temperature. This is Boltzmann constant, this is Boltzmann constant. This is Boltzmann constant whose value is 1.38 into 10 raised to the power minus 23 joule per Kelvin. So the kinetic energy of the gas is immaterial of the nature of the gas. What kind of gas it is? Oxygen, nitrogen, hydrogen, any kind of gas we take, the total average kinetic energy is given by 3 by 2 kBT, which is depending on only on absolute temperature. So amongst the given option, the correct option is option number 1. Kinetic energy is the only parameter which will be same for all the gases at a given temperature. Rest, if we can say momentum, mass and speed, all three will depend upon the type of gas. Momentum will depend upon the mass, velocity. Mass itself is dependent on the type of the gas, and speed itself will depend upon the type of gas, because molecular mass or mass of one molecule will be involved. So the correct option is option number 1. Coming to question number 2. Identify the logic operation performed by the given circuit. It is a logic circuit. This question is from logic gate chapter of semiconductor. ठीक है ना? तो एक लॉजिक सर्किट दे रखा है. अब पूछा गया है कि कौन ये पूरा कंबाइंड नेटवर्क किस गेट की तरह बिहेव करेगा. सो इफ वी से दिस इज नॉट गेट, दिस इज नॉट गेट, दिस इज ऑल्सो नॉट गेट, एंड दिस पर्टिकुलर गेट इज NAND gate. NAND gate. NAND gate is AND gate followed by NOT gate. AND gate followed by NOT gate. तो अगर if we see here input is A, तो NOT gate को inverter भी कहते हैं. It just inverts the input. तो A का जो input यहाँ पर हमें मिलेगा that will be A का conjugate. अगर 0 है तो 1, 1 है तो 0. ठीक है ना? तो A का conjugate हो जाएगा. और यहाँ पर B की अगर बात करें, B का inverse हो जाएगा B conjugate of B. Now A का conjugate and B का conjugate both are entering into this. Both these two inputs are in NAND gate. Now NAND gate, what NAND gate does? NAND gate का जो output होता है वो AND gate का मतलब AND gate plus NOT gate है. तो एक बार और B बार अगर ये input में आया है तो पहले जो इसका AND gate पार्ट है, जो AND gate वाला पार्ट है वो A बार इंटू B बार कर देगा. ठीक है, मल्टीप्लाई कर देगा. ठीक है, और जो नॉट गेट है, जो नॉट गेट वाला पार्ट है, फिर इसको रिवर्स करेगा तो ये टोटल का कॉन्जुगेट हो जाएगा. तो यहाँ पर जो A बार और B बार है, Y का फाइनल वैल्यू जो होगा वो A का कॉन्जुगेट, B का कॉन्जुगेट और होल का कॉन्जुगेट जस्ट अपोजिट हो जाता है. ठीक है, क्योंकि नॉट गेट लगा हुआ है, ये सर्कल का मतलब है नॉट गेट है. सो नाउ वी कैन सी दैट द इंटायर सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड, कैन बी डन लाइक दिस कि ये एक लॉजिक सर्किट है, दो इनपुट हैं, एक है A बार, एक है B बार, और यहाँ पर आ रहा है A बार इंटू डॉट B बार का होल बार. ठीक है ना? तो इसको अगर डी मोइवरेज थ्योरम से एक्सपैंड करें, इफ यू एक्सपैंड दिस ऑपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ डी मोइवरेज थ्योरम, तो A डबल बार प्लस B डबल बार हो जाएगा और ये A प्लस B हो जाएगा. ठीक है ना? तो हम लोग देख रहे हैं कि दो कॉन्जुगेट जो है, ये इनपुट जो मेन इनपुट था A और B, जो मेन इनपुट था A और B, दैट इज बीइंग इक्वल टू Y इक्वल टू A प्लस B. ठीक है ना? A प्लस B के आउटपुट A प्लस B आ जा रहा है. सो इट इज सिंपली OR गेट. तो ये OR गेट का ऑपरेशन है, ये OR गेट का ऑपरेशन है. ठीक है ना? OR गेट का ऑपरेशन है. यहाँ पे जो मेन इनपुट है A और B, वो कन्वर्ट हो जा रहा है A प्लस B में, तो ये OR गेट है. तो करेक्ट ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 2 है. Now coming to question number 3. The relation between time t and distance x is t equal to alpha x square plus beta x, where alpha and beta are constants. The relation between acceleration and velocity is time as a function of
x दे रखा है, टाइम एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है, हमसे पूछा है एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये पूछा गया है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी पूछा गया, टाइम एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है। इफ यू डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी गेट 2 अल्फा एक्स डी एक्स अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा बीटा डी एक्स अपॉन डी टी। नाउ ये तो 1 हो गया LHS, दिस बिकम्स 2 अल्फा एक्स वी, और ये बीटा वी। तो यहाँ से v का जो एक्सप्रेशन आया, v का जो कॉमन एक्सप्रेशन आया, टेकिंग v कॉमन, v का जो एक्सप्रेशन आया, v इक्वल टू 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, दिस इज v। ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना। अब इसी को यूटिलाइज करेंगे हम लोग। We know that acceleration can be written as dv by dt, which can be further written as v dv by dx, ठीक है। Now dv by dx we will be calculating from that relation, ठीक है ना। तो v equal to 1 by 2 alpha x plus beta. If you differentiate this dv by dx, we will be getting minus 2 alpha upon 2 alpha x plus beta का whole square. ये हमारा एक्सप्रेशन आएगा dv by dx। तो यहाँ से माइनस 2 अल्फा अलग कर लें, 1 बाई 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और 1 बाई 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा खुद क्या है, v है, तो ये माइनस 2 अल्फा वी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा वी स्क्वायर। अब ये माइनस 2 अल्फा वी स्क्वायर को अगर हम लोग यहाँ सब्सटीट्यूट करें तो a बराबर माइनस 2 अल्फा वी क्यूब। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, तो कि ऑप्शन 1 है। सो द करेक्ट answer for this particular question is option number 1. Now coming to question number 4, the refractive index of a prism with apex angle A is cot A by 2, the angle of minimum deviation is। ये सेम क्वेश्चन 27 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, बस ऑप्शंस में पाई की जगह 180 डिग्री यूज कर लिया गया है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला वी नो दैट इट इज इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ a बाई 2। अब n की वैल्यू कॉट a बाई 2 दे रखी है, और यहाँ पर साइन ऑफ a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 बाई साइन a बाई 2। अब कॉट a बाई 2 को वी कैन राइट एज कॉस a बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2, तो डिनोमिनेटर में दोनों तरफ साइन a बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर सिर्फ रह जाएगा इन द न्यूमरेटर कॉस a बाई 2, और RHS में रहेगा साइन ऑफ a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। नाउ वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू अ सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, आइदर दोनों तरफ कॉस कॉस हो या दोनों तरफ साइन साइन हो। तो कॉस a बाई 2 को वी कैन राइट वेरी इजिली साइन 90 माइनस a बाई 2, 90 डिग्री माइनस a बाई 2, एंड हेयर विल बी साइन ऑफ a प्लस डेल्टा मिनिमम होल डिवाइडेड बाई 2। तो दोनों तरफ अगर साइन है तो आर्गुमेंट भी बराबर होगा, तो क्वाइट नेचुरल 90 डिग्री माइनस a बाई 2 विल बी इक्वल टू a बाई 2 प्लस डेल्टा बाई 2। सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट डेल्टा मिनिमम इक्वल टू 180 माइनस 2a, ठीक है। तो 180 माइनस 2a इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर 4। तो मिनिमम डेविएशन जो इस पर्टिकुलर केस में बनेगा दैट विल बी 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, a rigid wire consists of a semicircular portion of radius r and 2 straight sections. The wire is partially immersed in a perpendicular magnetic field B equal to B naught J cap. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये जो मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किया गया था NTA के ऑफिशियल पेपर में, वो मिस्टेकनली कर दिया गया है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि फिगर में आप देख सकते हैं, द फिगर दैट दे हैव प्रोवाइडेड अलोंग विद द क्वेश्चन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इज इन द वर्टिकल प्लेन एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज कमिंग आउटवर्ड, सो इट कैन नेवर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, इट हैज टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। तो यहाँ पर जे कैप नहीं है, यहाँ पर टेक्निकली स्पीकिंग यहाँ पर होना चाहिए के कैप। सो दिस शुड बी के कैप, ठीक है ना, क्योंकि फिगर में जो एक्सेस शो किया गया है उसके अकॉर्डिंग दिस मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी इन द वाई डायरेक्शन, इट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फिगर एंड मींस अलोंग जेड एक्सिस। तो बी बराबर बी नॉट के कैप होना चाहिए, बट ऑन द डे ऑफ एग्जाम जे कैप के ही अकॉर्डिंग से पूछा गया था। नाउ दे आर आस्किंग व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस वायर, ठीक है ना, व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस वायर दे आर आस्किंग। तो इफ वी लुक इनटू द फिगर, तो ये हमारा इस तरह का सिचुएशन है, ये हमारा इस तरह का सिचुएशन है कि दो स्ट्रेट वायर हैं
और एक सेमी सर्कुलर वायर है, दो स्ट्रेट वायर एक सेमी सर्कुलर वायर है, और करंट इसमें जा रहा है आई, यहाँ से करंट जा रहा है आई, और यहाँ से करंट वापस आई निकल जा रहा है, एंड द इंटायर सिस्टम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर विच इज कमिंग आउटवर्ड, ठीक है ना, विच इज कमिंग आउटवर्ड। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें स्ट्रेट सेक्शंस की बात करें, फिर टॉक अबाउट स्ट्रेट सेक्शन, वी नो दैट फोर्स ऑन अ स्ट्रेट सेक्शन इज गिवन बाय आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी। ये फॉर्मूला होता है फोर्स ऑन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, तो एल क्रॉस बी। अब यहाँ पर अगर हम देखें इस पर्टिकुलर सेक्शन में वायर में करंट ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो आई एल क्रॉस बी विल गिव यू अ फोर्स इन द राइट डायरेक्शन। दिस इज फोर्स F1 on this section. I can write here left section. Similarly, in the right section, on the right part of the straight wire, just the direction of current has been reversed. So clearly the force will be towards right, Fr. Now these two forces will be equal and opposite, hence they will be cancelling out. So on the straight part there is no net force, no net magnetic force. Now come to the semicircular part. This distance is 2r. Because radius r, they are saying that the semicircular of radius r. So diameter will be 2r. Now, in case of semicircle part, if we see that actual force is F vector equal to I dl cross B का integral. Now, if the magnetic field is uniform, we can take it out of the integral sign. So dl vector का vector integral जो होगा, that will be nothing but displacement vector from here to here. This AB. This is the displacement vector, क्योंकि सारे vector tangent के along होंगे and we will vectorially add it, then it will be a displacement vector from initial point to final point. सारे tangent के along होंगे तो vectorially add करेंगे, it will be initial point to final point, final displacement vector. So जो force इसमें हो जाएगा, semicircular part में, जो semicircular part में force होगा, that will be F vector equal to current तो I है, length है 2r, this displacement vector 2r and it is along x axis. क्रॉस बी वेक्टर, बी इज बी नॉट के कैप। सो यहाँ से मैग्नीट्यूड की बात करें तो 2i बी नॉट आर आई क्रॉस के विच इज माइनस जे, सो माइनस 2i बी नॉट आर जे कैप, माइनस 2i बी नॉट आर जे कैप। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, minus 2i br j cap. So now this option will be matching with your solution only if when you assume that the magnetic field is along positive z axis, which is true because in the figure it is shown like that only. J cap के along करके नहीं यहाँ match होगा. So the correct option for this particular question is option number 4. Coming to question number 6. If the wavelength of the first member of Lyman series of hydrogen is lambda, the wavelength of the second member will be. बहुत basic question है. Now we know that the wavelength 1 by lambda for electronic transition is given by Reiber's constant z square into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. ये relation हमें पता है कि whenever an electron transits from higher energy orbit to lower energy orbit, then the wavelength of the emitted radiation is given by the relation 1 by lambda equal to rz square into 1 by n1 square minus 1 by n2 square, जहाँ पर n1 is the lower energy state, and n1 n2 is the higher energy state. ये लोअर एनर्जी स्टेट है और ये हायर एनर्जी स्टेट है. सो अब लाइमन सीरीज की बात की जा रही है, कि द फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज कब होगा? फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज तब होगा जब n1 तो 1 फिक्स हो जाता है. लाइमन सीरीज में ऑलवेज द डेस्टिनेशन एनर्जी स्टेट इज फिक्स विच इज n इक्वल टू 1 एंड द हायर विल बी n2 इक्वल टू 2. तो ये फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज. और अगर सेकेंड की बात करें तो n1 अभी भी 1 होगा और n2 हो जाएगा 3. ये सेकेंड मेंबर है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट पुट दीज टू वैल्यूज इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन एंड वी हैव टू टेक द रेशियो टू गेट द फाइनल आंसर. तो अब यहाँ पर इफ वी राइट दिस पर्टिकुलर वैल्यू हेयर, तो लैम्डा दे रखा है, तो 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर, जेड तो 1 हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन है. 1 by 1 square minus 1 by 2 square which is equal to r into 1 minus 1 by 4. तो यहाँ से हो जाएगा 3r by 4. ठीक है ना. तो r की वैल्यू आ गई 4 by 3 लैम्डा. ये इक्वेशन 1 हो गया. अब 2 में हमें फाइनल निकालना है, 2 के लिए हमें निकालना है. तो आई एम डूइंग हियर 2 के लिए निकालना है. तो रिक्वायर्ड 1 बाई लैम्डा डैश लेट सपोज. तो आर जेड स्क्वायर आर की वैल्यू 4 बाई 3 लैम्डा इंटू
1/1 माइनस 1/9 हो जाएगा ये, क्योंकि थर्ड में है, ठीक है। तो यहाँ पर 4/3 लैम्डा इंटू 8/9, ठीक है, तो 32/27 लैम्डा। तो इसका रेसिप्रोकल अगर लेंगे तो लैम्डा डैश विल बी 27 लैम्डा बाई 32. So the correct option is 27/32 lambda, which is option number 1. So the correct answer for this particular question is option number 1, 27/32 lambda. मतलब जो second member है Lyman series, उसकी जो wavelength है, that will be 27/32 times of the wavelength of the first member. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7. Four identical particles of mass m are kept at the four corners of a square. If the gravitational force exerted on one of the masses by the other masses is 2√2 plus 1/32 times gm square by l square, the length of the side of the square is. एक स्क्वायर की बात की जा रही है, दे आर टॉकिंग अबाउट अ स्क्वायर, एक स्क्वायर की बात की जा रही है जिसका साइड्स हमें पता करना है, ठीक है, और इसके हर कॉर्नर पे पॉइंट मास रखा हुआ है मास m का। फोर आइडेंटिकल पॉइंट मासेस ईच ऑफ मास m आर केप्ट एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर, ठीक है ना। नाउ लेट सपोज कि इसका साइड लेंथ मैं x मान लेता हूं, तो सभी x के होंगे और ये सभी m मास के हैं, ऑल ऑफ देम आर ऑफ मास m, ठीक है, ये भी क्वेश्चन में कहा गया है। नाउ इफ वी draw our little bit of construction, we will be calculating the force on this particular mass due to all the three masses. तो ये दोनों मास आपस में gravitational force is always attractive in nature, so it will always be towards the mass, ठीक है ना। तो ये और ये में अट्रैक्शन होगा, इसमें फोर्स हो जाएगा F1 लेट सपोज, ठीक है ना। इन दोनों में भी अट्रैक्शन होगा, इसमें फोर्स हो जाएगा F2 लेट सपोज, और ये इस डायगोनल में जो मास रखे हैं उसमें भी अट्रैक्शन होगा, लेट होगा, फोर्स होगा लेट सपोज F3. So if we take our x-axis here, if we take our x-axis here and y-axis here and origin here, तो f1, f2, f3 को अगर हम लोग रिजॉल्व कर लें, so f1 will be equal to, f1 vector will be equal to gm square by x square, gm square by x square, और चूंकि नेगेटिव की तरफ है तो माइनस जे कैप, ठीक है। उसी तरह f2 will be equal to, F2 x एक्सिस के अलॉन्ग है, तो जी एम स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आई कैप, ठीक है, और इधर हो जाएगा। अब F3 की अगर हम लोग बात करें, इफ यू टॉक अबाउट F3, तो F3 का मैग्नीट्यूड हो जाए, ये जो डिस्टेंस है डायगोनल का, दैट विल बी √2x, तो मैग्नीट्यूड, और ये एंगल है 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री डायगोनल जो होता है स्क्वायर का 45 डिग्री पर होता है। तो F3 का एक x कंपोनेंट हो जाएगा F3 cos 45 आई कैप और F3 cos sin 45 जे कैप। तो इसके अगर हम लोग वो x कंपोनेंट पॉजिटिव है तो जी एम स्क्वायर बाई जी एम स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है ना। cos 45 के लिए यहाँ पे √2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आई कैप, ठीक है, और जे कैप हो जाएगा माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन 2√2x स्क्वायर जे कैप। सो ये F1, F2, F3 सारे आ गए, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। तो अगर हम लोग नेट फोर्स की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट नेट फोर्स, इफ़ यू टॉक अबाउट नेट टोटल फोर्स ऑन दिस पार्टिकल, तो ये सिंपली वेक्टर सम हो जाएगा इन तीनों का वेक्टर सम हो जाएगा। तो F नेट विल बी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। तो F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, I और I एक साथ करें तो कोफिशिएंट को, तो जी एम स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए, 1 + 1/2√2, 1 + 1/2√2 आई कैप माइनस जे कैप को अगर एक साथ देखा जाए तो जी एम स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1 + 1/2√2 जे कैप, ठीक है ना। तो ये आपका आई कैप और नेट फोर्स आ गया। अब नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो फाइनल जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा फोर्स का एफ नेट, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दोनों कॉमन सेम ही टर्म है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो √2 इंटू जी एम स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1 + 1/2√2। सो यहाँ से अगर हम लोग इसको देखें तो जी एम स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर को इधर कर देते हैं,
ठीक है ना, इधर ये √2 प्लस हाफ, √2 प्लस हाफ, तो 2√2 प्लस 1/32 GM² बाई एक्स स्क्वायर 2√2 प्लस 1/2, 2√2 प्लस 1/2, 2√2 प्लस 1/2, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन जो यहाँ पर आया, इसको मैं क्लियरली लिख देता हूँ, 2√2 प्लस 1/2। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आया फोर्स का, ये फाइनल एक्सप्रेशन आया फोर्स का, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो कंपेयर किया जाए तो F इक्वल टू GM² बाई एक्स स्क्वायर, ऊपर नीचे अगर हम लोग 16 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, इफ यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 16, 2√2 प्लस 1/2 इंटू 16/16, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा जाएगा GM² बाई, ये 16 को नीचे ले आते हैं, x/16 x/4 का होल स्क्वायर इंटू 2√2 प्लस 1/32. Now if we compare our final result with the result given in the question, so 2√2 plus 1 यहाँ भी है, 32 यहाँ भी है, GM² by L square. So x/4 is what? L. x/4 जो है वो L के बराबर है. So L is nothing but equal to x/4. So x equal to 4 times of L. यानी स्क्वायर का जो साइड अज्यूम हमने किया था स्टार्टिंग में x, तो उसकी वैल्यू है 4 times of length of the square. So the correct option for this particular question is option number 2. Correct option है option number 2. Now moving to question number 8. Moving to question number 8, the given figure represent two isobaric process for the same mass of an ideal gas. Then एक ideal gas के लिए ये दो ग्राफ बनाए हुए, सेम ideal gas है, VT कर्व है, ये वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ है, और प्रेशर और P1 P2 में रिलेशन है, आपको कंपेयर करना ऑप्शंस में. सो आइडियल गैस इक्वेशन वी कैन राइट एज PV इक्वल टू NRUT, where N is the number of moles, RU is the universal gas constant or molar gas constant, T is the absolute temperature. So अगर isobaric process है तो pressure constant है, तो NRU by P into T लिखा जा सकता है, ठीक है ना. So we can see that if we plot V on y axis and temperature on x axis, so this will be straight line y equal to mx का ग्राफ है ये, जिसका स्लोप जो है that is NRU by P. This is the value of slope, ठीक है. n जो है नंबर ऑफ मोल्स है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो उसको आप अगर मास मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे तो वो मास ऑफ द गैस के टर्म में आ जाएगा. कहने का मतलब है कि द न्यूमरेटर पार्ट इज फिक्स्ड, ठीक है. तो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट प्रेशर. तो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा, वो कम प्रेशर रिप्रेजेंट करेगा, और जिसका स्लोप कम होगा वो ज़्यादा प्रेशर रिप्रेजेंट करेगा. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है, तो क्वाइट नेचुरल है कि θ1 ज़्यादा है θ2 से, तो स्लोप P2 का ज़्यादा होगा P1 से. सो P2 विल बी लेस देन P1. यहाँ से कंक्लूजन ये आया कि P2 इज लेस देन P1, ठीक है ना. P2 P1 से कम है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. Sorry. Coming to question number 9, if the percentage error in measuring the length and diameter of a wire are 0.1% each, the percentage error in measuring resistance will be. देखिए resistance can be written as rho into length by A, और rho L, A को लिखा जा सकता है pi by 4d square in terms of diameter, ऊपर जाके 4 rho by pi into L by d square, ये हमारा रिलेशन बनेगा. तो चूंकि ये पार्ट कांस्टेंट है तो एरर में तो ये काउंट होगा नहीं, ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है, तो जो रिलेटिव एरर होगा रेजिस्टेंस में दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा L बाई L प्लस 2 टाइम्स डेल्टा D बाई D. अगर हम लोग दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दें, इफ़ यू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 100, इफ़ यू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 100, तो वी विल गेट परसेंटेज एरर, ठीक है ना. तो अब ये कह रहे हैं कि परसेंटेज एरर इन मेजरिंग डायमीटर एज वेल एज लेंथ इज 0.1%, तो इसकी भी वैल्यू 0.1 है, प्लस 2 इंटू 0.1 है, तो ये दोनों ऐड करके फाइनली 0.3% आ जाएगा. सो द परसेंटेज एरर इन मेजरिंग द रेजिस्टेंस विल बी 0.3%. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10. इन अ प्लेन EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ प्लेन EM वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट साइनसॉइडली एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 into 10 raised to the power 10 hertz and an amplitude of 50 volt per meter. The total average energy density of the electromagnetic field of the wave is. ठीक है ना. एनर्जी डेंसिटी पूछा. वी ऑलरेडी नो दैट व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑसिलेट्स, प्लेन EM वेव ऑसिलेट्स, तो एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इन मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है. और उन दोनों का जो सम होगा वो टोटल एनर्जी डेंसिटी होगी, एंड इट विल बी गिवन एज टोटल एनर्जी डेंसिटी इज गिवन एज हाफ एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर.
ठीक है ना, टोटल एनर्जी डेंसिटी यही है। नाउ वी नो एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी है और ई नॉट की जो वैल्यू दे रखी है 50 वोल्ट पर मीटर, एम्पलीट्यूड की वैल्यू दे रखी है 50 वोल्ट पर मीटर, दिस इज द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। तो हाफ इंटू 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 into 50 into 50. If we will solve this, we will be getting 1.106 into 10 raised to the power -8 joule per meter cube. So the correct option is option number 1. ठीक है ना, इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई यूज नहीं हुआ, सुपरफ्लुअस डेटा है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये ईएम वेव की इंटेंसिटी के एनर्जी डेंसिटी के ऊपर। Now coming to question number 11, a force is represented by F equal to ax square plus b root t, where x equal to distance and t equal to time. The dimension of b square by 2a is, बहुत basic question है dimension analysis का। So let's see the expression for the force what they have provided in the question is ax square plus b root t. Now we know that कि as far as principle of homogeneity dimensional homogeneity is concerned, दोनों term के dimension force के dimension के होने चाहिए। So dimension of ax square should be equal to dimension of force which is mlt minus 2. So dimension of x square will be mlt minus 2. So dimension of a will be mlt minus 2 और x चूंकि लेंथ है तो लेंथ का डायमेंशन l स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से ml minus 1 t minus 2. सो ए का जो डायमेंशन आया दैट इज ml minus 1 t minus 2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए। ठीक है ना, दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए। मैं यहाँ पे कॉर्नर में लिख दे रहा हूँ, डायमेंशन ऑफ ए दैट वी हैव गॉट इज ml minus 1 t minus 2। उसी तरह बी रूट टी की अगर बात करें, डायमेंशंस ऑफ बी रूट टी विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स। ये फोर्स की डायमेंशन होगी mlt minus 2। ठीक है ना, टाइम का बी का डायमेंशन और टाइम का डायमेंशन t टाइम है तो 1/√2 का डायमेंशन होगा mlt minus 2। सो डायमेंशन ऑफ b विल बी mlt minus 2 यहाँ है और ऊपर जाएगा तो -2 minus half 5/2। If we square both sides, we will be getting m square l square t raised to the power -5। तो ये b स्क्वायर का डायमेंशन है m स्क्वायर l स्क्वायर t raised to the power -5, दिस इज द डायमेंशन ऑफ b। और a का डायमेंशन मैंने निकाल रखा है ml minus 1 t minus 2। नाउ दे आर आस्किंग द डायमेंशन ऑफ b स्क्वायर बाई a। तो b स्क्वायर बाई a का जो डायमेंशन की अगर हम लोग बात करें तो b स्क्वायर का डायमेंशन इफ यू राइट m स्क्वायर l स्क्वायर t minus 5 अपॉन m l minus 1 t minus 2। तो यहाँ से m जाएगा एक ऊपर l3 t minus 3। So this will be the required dimension of b upon b square upon a. So the correct option is option number 1 as far as this question is concerned. Now coming to question number 12, two charges q and 3q are separated by a distance r in air. At a distance x from charge q, the resultant electric field is 0. The value of x is. दो चार्ज हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, दो पॉइंट चार्जेस हैं q, ठीक है ना, और यहाँ पर q है, यहाँ पे 3q है। ये r डिस्टेंस से सेपरेटेड है एयर में। एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम चार्ज q द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब इस चार्ज से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कह रहा है एज फार एज द क्वेश्चन इज कंसर्न। सो दैट पॉइंट कैन नॉट लाई एनीवेयर अबव द लाइन और बिलो द लाइन और एनीवेयर इन द प्लेन, इट हैज टू लाई ऑन द लाइन इटसेल्फ। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी आप पॉइंट ले लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह में एक एंगल होगा एंड इट विल गिव अ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के लिए इक्वल अपोजिट होना पड़ेगा और इक्वल अपोजिट तभी होगा जब वो लाइन पर होगा। ठीक है ना, सो यहाँ पर लेट सपोज कोई पॉइंट है, लेट सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट है P, यहाँ से डिस्टेंस x है तो यहाँ से डिस्टेंस r माइनस एक्स होगा। ठीक है ना, यहाँ भी नहीं ले सकते। इफ यू टेक द पॉइंट दिस साइड और दैट साइड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि बोथ चार्जेस आइडेंटिकल है, मतलब नेचर वाइज सेम है। सो साइन की वजह से एक ही डायरेक्शन में नेट फील्ड आएगा तो वो एड ऑन होगा, तो बीच में ही लेना पड़ेगा समवेयर। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड P के पास अगर देखें तो P पॉइंट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इस चार्ज की वजह से KQ बाई एक्स स्क्वायर अवे फ्रॉम द चार्ज, और उसकी वजह से K3KQ बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इक्वल अपोजिट होने के लिए मैग्नीट्यूड बराबर होना पड़ेगा। सो मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल 3KQ r माइनस एक्स का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू KQ बाई एक्स स्क्वायर। सो कैंसलिंग
के क्यू टर्म को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से r माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर 3 आ जाएगा। सो यहाँ से r बाई एक्स माइनस 1 विल बी रूट 3। सो फाइनली x विल बी r अपॉन 1 प्लस रूट 3। वेरी बेसिक क्वेश्चन, ठीक है ना। न्यूट्रल पॉइंट का लोकेशन निकालना था। सो दैट इज x इक्वल टू r बाई 1 प्लस रूट 3। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। Now coming to question number 13. In the given arrangement of a doubly inclined plane, two blocks of masses m and small m are placed. The blocks are connected by a light string passing over an ideal pulley as shown. The coefficient of friction between the surface of the plane and the blocks is 0.25. The value of m for which capital M बराबर 10 kg block will move down with an acceleration of 2 meter per second square is. इस क्वेश्चन में एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है जिसके दोनों इंक्लाइन सर्फेसेस पे दो ब्लॉक्स रखे हैं, कैपिटल एम और स्मॉल एम, और एक फिक्स पुली से कनेक्टेड है जो कि स्मूथ है और इन स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, ठीक है। कोई कहीं पर कोई फ्रिक्शन नहीं, ऑल द आइडियल अजम्पशन फॉर यूज्ड। तो ये कह रहे हैं कि इन द क्वेश्चन दे आर सेइंग दैट कि इफ दिस मास इज 10 kg, इफ दिस इज 10 kg मास, देन व्हाट इज द मास ऑफ स्मॉल m सो दैट दिस ब्लॉक स्लाइड्स विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। अगर ये नीचे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से स्लाइड कर रहा है तो इसका मास क्या हो, ठीक है। ये 37 डिग्री 53 डिग्री एंगल दिया हुआ है। सो सबसे पहले स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ये फ्रिक्शन प्लस एनएलएम का क्वेश्चन है कंबाइंड करके। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि चूंकि सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक विल बी सेम। इफ दिस ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउनवर्ड विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन दिस ब्लॉक विल आल्सो गोइंग अपवर्ड विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, इसका भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इधर है और इसका भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इधर है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, ठीक है। नाउ फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम लोग बनाएं, सो यहाँ पर mg होगा, ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल होगा n1, ठीक है। ये चूंकि ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन विल एक्ट f1 के इधर एक्ट करेगा, ठीक है। और ये 37 डिग्री है तो ये भी आप ये आपको 53 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। सो अगर फर्स्ट ब्लॉक का हम लोग पढ़ें एनएलएम मोशन फर्स्ट ब्लॉक के लिए फॉर ब्लॉक एम की अगर बात करें, ठीक है, और एक टेंशन फोर्स भी है, सॉरी एक टेंशन फोर्स को भी लेना पड़ेगा। यहाँ पर एक टेंशन फोर्स है टी, टेंशन फोर्स टी ऐड कर रहा है तो ये इसका हो जाएगा। तो इसका अगर हम लोग देखें एनएलएम इक्वेशन, तो चूंकि ऊपर जा रहा है सो इट विल बी टी माइनस एम जी कॉस 53, टी माइनस एम जी कॉस 53, ठीक है ना, माइनस f1 के बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन ए जो कि 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। जी की वैल्यू 10 हम लोग ले लेंगे। सो यहाँ पर टी माइनस 10 इंटू एम, साइन कॉस 37 है, ये 4/5 हो जाएगा, ठीक है। और F1 के फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मल कंपोनेंट n1 जो है वो एम जी कॉस थीटा को बैलेंस करेगा, तो म्यू एम जी कॉस थीटा, तो म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.25, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25, 1/4 इंटू एम इंटू 10 इंटू कॉस थीटा कॉस 37, म्यू एम जी कॉस थीटा एंड थीटा इज 37, तो यहाँ पे कॉस 37 हो जाएगा, और ये बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू ए यानी कि 2m, ठीक है। नाउ इफ यू सॉल्व दिस, t माइनस 10 ये 3/5 होगा, ये 3/5 होगा, ठीक है 3/5। सो 10 5 2 ज़ा 10, ये 3 2 ज़ा 6m हो गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस ये करेंगे तो कॉस 37 4/5 होता है, 5 2 ज़ा 10, 1/4 इंटू एम इंटू 10 इंटू कॉस 4/5, 4 से 4 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10 बराबर 2m, ठीक है ना। t माइनस 6m माइनस 2m, 8m 2m 10m, तो t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10 टाइम्स ऑफ m, इतना न्यूटन का टेंशन होगा 10 टाइम्स ऑफ m, ठीक है ना। 6m और 2m, 8m प्लस 2m 10m, ठीक है। तो टेंशन जो स्ट्रिंग में आएगा दैट विल बी 10m, और यहाँ भी टेंशन 10m ही
रहेगा उस स्ट्रिंग में उस ब्लॉक के लिए। सो यहाँ का जो टेंशन हमारा वैल्यू आया T इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ M, T इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ M, ठीक है। तो ये जो टेंशन है कंटिन्यू हुआ है, ये जो टेंशन कंटिन्यू हुआ है, यहाँ भी वही टेंशन होगा T। नाउ इस ब्लॉक का अगर FBD हम लोग देखें, इस ब्लॉक का अगर हम लोग FBD देखें तो यहाँ पर कैपिटल Mg लग रहा है और यहाँ पर नॉर्मल लग रहा है N2। चूँकि ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स F2 के ऊपर लगेगा। सो इसका अगर हम लोग इक्वेशन लिखे M ब्लॉक के लिए तो चूँकि नीचे जा रहा है तो नीचे वाला फोर्सेस ज़्यादा होंगे, तो Mg कॉस Mg साइन 53 डिग्री, Mg साइन 53 डिग्री हो गया, माइनस T माइनस F2 के बराबर M इंटू 2, एक्सेलरेशन इसका भी 2 ही है। M क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 kg, ठीक है ना, तो G भी 10 है तो 10 इंटू 10, ठीक है। साइन 53 की अगर बात करें तो साइन 37 होता है, 3/5 साइन 53 4/5 हो गया, ठीक है। माइनस T की वैल्यू 10 इंटू स्मॉल m लाए थे, F2 के म्यू mg कॉस थीटा 1/4 इंटू M 10 इंटू G 10 और कॉस 53 कॉस 53 3/5 बराबर 2 इंटू 10, ठीक है। कैपिटल M 10 है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 5 2 ज़ा 10 10 2 ज़ा 80 माइनस 10M माइनस 5 2 ज़ा 10 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15 15 प्लस बराबर 20। सो 10M 80 माइनस 15 माइनस 20, सो जो इसकी वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करके सो 10M विल बी 80 माइनस 20 माइनस 15 60 माइनस 15 10M इक्वल टू 45 M इक्वल टू 45/10 इक्वल टू 4.5। सो स्मॉल m की जो वैल्यू है, जो मास है, दैट विल बी 4.5 kg। सो इस पर्टिकुलर ऑप्शन का क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 4.5 kg, ठीक है ना। 4.5 kg, इस छोटे वाले ब्लॉक का मास 4.5 kg होना चाहिए, ओनली देन दिस ब्लॉक विल fall down, so slide down with acceleration of 2 meter per second square. Now coming to question number 14, a coil is placed perpendicular to a magnetic field of 5000 Tesla. When the field is changed to 3000 Tesla in 2 seconds, an induced EMF of 22 volt is produced in the coil. If the diameter of the coil is 0.02 meter, then the number of turns in the coil is, ठीक है ना। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। फ्रॉम फैराडे लॉ वी नो दैट द EMF induced is given by माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, और फ्लक्स जो होता है दैट इज बी ए कॉस थीटा। दिस इज द फ्लक्स बी ए कॉस थीटा। अब चूंकि प्लेस परपेंडिकुलर रखा गया है कॉइल को, कॉइल हैज बीन प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा इज 0, तो कॉस 0 1 हो जाएगा, तो फ्लक्स विल बी सिंपली बी इंटू ए। नाउ इफ यू पुट दिस फ्लक्स एक्सप्रेशन इन द एक्सप्रेशन ऑफ EMF इंड्यूस, इट विल बी माइनस डी बी ए अपॉन डी टी, ठीक है ना, माइनस एरिया बाहर है डी बी अपॉन डी टी, ठीक है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई करना रह गया है, नंबर ऑफ टर्न्स भी मल्टीप्लाई होगा एन, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कह रहे हैं कि इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड 5000 टेस्ला है, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड 5000 टेस्ला और उसके बाद डिक्रीज होकर 3000 टेस्ला हो गया है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड हैज बीन डिक्रीज टू 3000 कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। तो चेंज की बात की जाए तो EMF इंड्यूस है 22 वोल्ट का, तो बहुत बेसिक है। EMF इंड्यूस है 22 वोल्ट का। सो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 22 वोल्ट की EMF इंड्यूस्ड है, नंबर ऑफ टर्न्स कैलकुलेट करना है n, एरिया फील्ड का दे रखा है डायमीटर ऑफ द कॉइल इज 0.02, तो π/4 इंटू 0.02 स्क्वायर, सर्कुलर कॉइल है तो ये एरिया हो गया π/4 डी स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी। चेंज कितना है? 3000 में से 5000 गया तो माइनस ऑफ 2000, और ये प्लस बना देगा, और कितने देर में? 2 सेकेंड में, ये हुआ है 2 सेकेंड। सो यहाँ से कैलकुलेट करना, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। तो अगर हम लोग उसको देखें तो 22 बराबर n इंटू पाई
को 22/7 लिख सकते हैं, 1/4 इंटू 0.02 का होल स्क्वायर इंटू 1000. इन सभी को कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स विल कम आउट टू बी 70. So for this particular case the answer is option number 2. Option number 2 is the correct answer. Now coming to question number 15, the fundamental frequency of closed organ pipe is equal to the first overtone frequency of an open organ pipe if length of the open pipe is 60 cm, the length of the closed pipe will be. ये क्वेश्चन जो साउंड चैप्टर का है ओपन ऑर्गन पाइप का, ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, जस्ट एक रिलेशन यूज करना है. वी नो दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की अगर आप बात करें तो दैट इज गिवन बाई 2n+1 इंटू v/4 इंटू एल सी फॉर क्लोज्ड, ठीक है ना, जहाँ पर v क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है, और एल सी क्या है, लेंथ ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप, न्यू क्लोज. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की अगर हम लोग बात करें, न्यू क्लोज की, न्यू सी फंडामेंटल की अगर बात करें, न्यू सी अगर फंडामेंटल की बात करें तो n = 0 पुट करना पड़ेगा, इट विल बी v/4LC, सिंपल, ठीक है. ये इक्वेशन 1 हो गया. और ओपन ऑर्गन पाइप की बात करें तो न्यू ओपन की जो होती है फ्रीक्वेंसी दैट इज NV/2LO, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ v/2LO. v इज द सोनिक स्पीड, 2 LO इज द लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप. तो अब क्वेश्चन में यहाँ पे अगर फंडामेंटल की बात करेंगे तो n = 1 वी हैव टू पुट. फर्स्ट ओवरटोन की बात करेंगे तो n = 2. तो न्यू ओपन का जो फर्स्ट ओवरटोन होगा, न्यू ओपन का जो फर्स्ट ओवरटोन होगा दैट विल बी 2v/2L फॉर n = 2. तो ये v/L0 हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा, सिंपली v/L0. अब क्वेश्चन में कह रहा है, ये दिस इज इक्वेशन 2. अब इन क्वेश्चन इट इज सेइंग that की first fundamental frequency of the closed organ pipe is equal to first overtone frequency of the open organ pipe. So v/4LC is equal to v/L0, ठीक है ना. तो कंडीशन जो हमारी establish हुई, the condition which we get from these two equation is that कि v/4LC is equal to v/L0. v cancel, so यहाँ से 4LC equal to L0, 4 into length of closed pipe LC, और इसकी 60 दे रखी है तो LC का हो जाएगा 15 सेंटीमीटर. सो क्लोज ऑर्गन पाइप की जो लेंथ होनी चाहिए दैट विल बी 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 15 सेंटीमीटर. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ये बहुत फेमस ग्राफ है. अ स्मॉल स्टील बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू अ लॉन्ग सिलेंडर कंटेनिंग ग्लिसरीन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द ट्रांजिट ऑफ द बॉल, ठीक है ना. टर्मिनल वेलोसिटी का ये क्वेश्चन है, ठीक है. ये एक लॉन्ग सिलेंडर में जिसमें ग्लिसरीन रखी हुई है, एक लॉन्ग सिलेंडर है जिसमें ग्लिसरीन रखी हुई है, ठीक है. उसमें एक बॉल को अगर हम लोग ड्रॉप कर दें, ये लेट्स सपोज इट इज ग्लिसरीन, और एक बॉल को अगर हम लोग ड्रॉप कर दें, जस्ट यहाँ से रिलीज कर दें, ठीक है ना, तो इसकी वेलोसिटी का कैसे वेरिएशन होगा विथ टाइम, इसका ग्राफ पूछा गया है. लेट्स सपोज दिस इज द वेलोसिटी, उसका ग्राफ पूछा गया है, ठीक है ना. ये ग्लिसरीन का लॉन्ग, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसका. अगर हम लोग देखें तो द मोमेंट व्हेन वी ड्रॉप द बॉल, द मोमेंट व्हेन वी ड्रॉप द दिस स्फेरिकल बॉल इन दिस ग्लिसरीन, तो क्या क्या इसमें फोर्सेस लगेंगे. आप जैसे ही व्हेन वी रिलीज दिस स्फीयर इन दिस सिलेंडर, तो दो फोर्सेस साइमल्टेनियसली काम करना शुरू कर जाएंगे. वन इज द वेट फोर्स mg एंड अनदर इज द बायंसी फोर्स, ठीक है ना. तो एक फोर्स तो इसमें जो काम करेगा दैट विल स्टार्ट एक्टिंग, दैट विल बी mg, एंड above it will be buoyancy Fb, which will be rho L volume of cylinder, sorry sphere into g, और ये हो जाएगा rho B into volume into g. Now we can see that चूंकि डेंसिटी लिक्विड की हमेशा कम रही होगी डेंसिटी ऑफ बॉडी से, इसलिए बॉडी नीचे सिंक किया है, तो ये पार्ट ज़्यादा है, ये पार्ट कम है, और नेट एक्सेलरेशन की वजह से एक वेलोसिटी आएगी, तो बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में. द मोमेंट एक्सेलरेशन कम्स इनटू पिक्चर, वेलोसिटी इंक्रीज करने लगेगी, और वो वेलोसिटी इंक्रीज इन वेलोसिटी विल बी रेजिस्टेड बाय ड्रैग फोर्स Fd, ठीक है ना. ड्रैग फोर्स की जो प्रॉपर्टी होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड इट इज ऑलवेज अपोजिटली डायरेक्टेड टू इट. जो स्पीड है, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा ड्रैग फोर्स होगा, बट डायरेक्शन हमेशा स्पीड के वेलोसिटी के अपोजिट होगा, क्योंकि वो रेजिस्टिव फोर्स है. सो इस पॉइंट पर जैसे ही अब हमने करा तो बायंसी फोर्स और ग्रेविटी फोर्स में कॉम्पिटिशन था. ग्रेविटी फोर्स ज़्यादा थी, बायंसी फोर्स कम था, और ये बॉडी सिंक करने लगी. सिंक करने की वजह से क्या हुआ, एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी इंक्रीज करी, उसकी वजह से ड्रैग फोर्स आया. नाउ ड्रैग फोर्स एंड बायंसी फोर्स आर इन
same direction and gravity is in opposite direction. So this drag force is variable force. It is increasing with speed. So a time will come that drag force and buoyancy force will add up together and they will equal to what? Gravitational force. And at that particular instant, the ball will come into equilibrium and there will be no net force on the ball. And hence the acceleration of the ball will be zero. उसके बाद उसकी speed change नहीं करेगी. So that situation is known as terminal situation and the velocity is called terminal velocity. तो अगर हम लोग velocity का variation देखें इस केस में, so वो कुछ इस तरह से आता है 1 minus e raised to the power minus bt टाइम के साथ वेलोसिटी सम कांस्टेंट a इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस bt एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, ठीक है. तो इसको 1 अपॉन ई रेज टू द पावर bt लिख सकते हैं, ठीक है. अब वी कैन सी दैट इफ यू टेन t इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करें बहुत लॉन्ग टाइम के लिए तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी और वैसे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ. सो द नेचर ऑफ द ग्राफ विल बी लाइक दिस कि यहाँ से तो वेलोसिटी शुरू में इंक्रीज करेगी और फिर धीरे धीरे जाके वो डिक्रीज कर स्टेडी हो जाएगी. सो ये जो वेलोसिटी होता है स्टेडी वेलोसिटी, दैट इज द टर्मिनल वेलोसिटी. सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2. A coin is placed on, next question है question number 17. A coin is placed on a disc. The coefficient of friction between the coin and the disc is mu. If the distance of the coin from the center of the disc is r, the maximum angular velocity which can be given to the disc so that the coin does not slip away is. Coin slip नहीं कर रहा है डिस्क के ऊपर. बहुत बेसिक क्वेश्चन है फ्रिक्शन का, ठीक है ना. दिस इज एक डिस्क है, उस डिस्क के ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है जिसकी सेंटर से डिस्टेंस है r, ठीक है, और ये डिस्क रोटेट कर रहा है. दिस डिस्क इज रोटेटिंग. नाउ इन द क्वेश्चन दे आर सेइंग दैट व्हाट मैक्सिमम एंगुलर स्पीड वी कैन इम्पार्ट टू द डिस्क सो दैट द कॉइन डज नॉट स्लिप्स ओवर द डिस्क. दिस इज द कॉइन, ये कॉइन है और ये डिस्क है. तो अगर कॉइन का FBD अगर हम लोग बनाएं तो अगर हम लोग ये इस तरह से देखें, ये डिस्क है और यहाँ पर एक कॉइन रखा है, ठीक है. ये तो टॉप व्यू हो गया था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस व्यू एंड द एंटायर डिस्क इज रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा. सो कॉइन पर अगर फोर्स की बात करें, सो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस इज द mg फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द कॉइन. ये कॉइन है. Now when the disk is rotating but natural, the coin will be having a centripetal acceleration v square by r or omega square or whatever whichever you like, you can use the expression. ये distance r है. तो ओमेगा स्क्वायर आर इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर और टुवर्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द डिस्क, ठीक है ना. नाउ इफ यू लुक एट द कॉइन, सो नॉर्मल एंड mg फोर्स आर एक्टिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन, सो दे कैन नॉट प्रोवाइड दिस सेंट्रीपिटल फोर्स. सो द ओनली फोर्स विच कैन प्रोवाइड दिस नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना. अब चूंकि कॉइन को स्लिप नहीं करना है, सो द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द कॉइन एंड द डिस्क हैज टू बी स्टैटिक इन नेचर. इट कैन नॉट बी काइनेटिक फ्रिक्शन. सो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा दैट विल बी, यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा दैट विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना, Fs. और वो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो फोर्स होगा वो टुवर्ड द सेंटर होगा. सो Fs. तो हम लोग सिंपल यहाँ पे यूज करेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन Fs इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर मास इनटू एक्सेलरेशन mac m omega square r. Now we know that the condition on static friction is कि static friction can never be greater than maximum static friction. So Fs is less than Fs max, ये limiting condition होती है, ठीक है ना. तो m omega square should be less than mu s n और n की वैल्यू हो जाएगी mg, ठीक है ना. m से m कैंसिल हो जाएगा. So omega square should be less than mu s g by r स्क्वायर रूट, यहाँ से ओमेगा हटा दें, स्क्वायर रूट हट जाएगा. So the angular velocity should be less than or equal to this expression, ठीक है ना. angular velocity इस expression के बराबर हो या उससे कम हो. So maximum की अगर बात करें, so it will be mu g by r. So correct option is option number 3. Now coming to question number 18. Two conductors have the same resistances at 0 degree Celsius, but their temperature coefficient of resistance are alpha 1 and alpha 2. The respective temperature coefficient for their series and parallel combination are.
अल्फा वन प्लस ये ऑप्शन दिया हुआ। दो रेजिस्टेंस की बात की गई है, दो रेजिस्टेंसेस हैं, दोनों का रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पे सेम है, आर मान लेते हैं, इसका भी आर मान लेते हैं। इसका थर्मल कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है वो अल्फा वन है और उसका अल्फा टू है। तो पूछा गया है कि अगर दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो इक्विवेलेंट अल्फा क्या होगा, और फिर दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो इक्विवेलेंट अल्फा क्या होगा। ठीक है ना, बहुत थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नाउ वी नो दैट कि रेजिस्टेंस का वेरिएशन विद टेम्परेचर इज गिवन बाई आर इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये एक्सप्रेशन होता है किसी भी रेजिस्टेंस का वेरिएशन विद टेम्परेचर। अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वी कैन से आर बराबर आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। आर नॉट इज द टेम्परेचर एट सम रेफरेंस टेम्परेचर, लेट्स से 0 डिग्री सेल्सियस, एंड डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। सो सबसे पहले सीरीज की अगर बात करें तो आर इक्विवेलेंट वी नो दैट आर वन प्लस आर टू होता है, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपको जाकर आर इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, आर इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ से आर और आर टू आर, आर प्लस आर टू आर, और आर अल्फा डेल्टा टी टू आर प्लस अल्फा वन प्लस अल्फा टू इंटू आर डेल्टा टी। टू आर को अगर कॉमन ले लूँ तो वन प्लस अल्फा टू बाई टू इंटू डेल्टा टी, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो सीरीज़ के लिए अगर हम लोग देखें, सीरीज़ के लिए हम लोग देखें तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है, और इसको अगर हम लोग कंपेयर करें इस पर्टिकुलर इक्वेशन से तो सीरीज़ के लिए इक्विवेलेंट तो टू आर हो जाता है। व्हेन द टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन देयर इक्विवेलेंट इज सिंपली टू आर, तो ये इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, इनटू वन प्लस अब ये जो पैरामीटर है ना, दिस इज द पैरामीटर फॉर इक्विवेलेंट अल्फा, अल्फा वन प्लस अल्फा टू बाई टू इंटू डेल्टा टी। ठीक है ना, सो इक्विवेलेंट अल्फा वन प्लस अल्फा जो सीरीज के लिए इक्विवेलेंट आ जाएगा, अल्फा इक्विवेलेंट जो सीरीज के लिए आ जाएगा दैट इज अल्फा वन प्लस अल्फा टू बाई टू। ये तो सीरीज की कहानी हो गई। नाउ कमिंग टू पैरेलल, पैरेलल की अगर बात करें, इफ यू टॉक अबाउट पैरेलल, तो 1 बाई आर इक्वलेंट इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू, ये होता है सिंपल। ठीक है ना, आर वन की अगर बात करें सो इसको आर वन प्लस आर टू बाई आर वन आर टू। ठीक है, अच्छा इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे अगर, तो आर इक्वलेंट इक्वल टू आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। आर वन कैन बी रिटन एज आर इंटू वन प्लस अल्फा वन डेल्टा टी, और ये कैन बी रिटन एज आर इंटू वन प्लस अल्फा टू डेल्टा टी। आर वन आर टू का रिस्पेक्टिव एक्सप्रेशन पुट कर दिया। अच्छा, आर वन आर टू का अभी हमने जस्ट निकाला था, वी हैव टू आर इंटू वन प्लस अल्फा टू बाई टू डेल्टा टी, ये एक्सप्रेशन था आर वन प्लस आर टू का। ठीक है, नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस वी यूजिंग सम अप्रोक्सीमेशंस, जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन में हम लोग अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, नेग्लेक्टिंग एच ओ टी हायर ऑर्डर टर्म्स, वही अप्रोक्सीमेशन लगा के हमें रिजल्ट निकालना होगा। ठीक है ना, तो एक आर से एक आर, ये आर कैंसिल हो जाएगा, दिस आर विल बी कैंसिल, सो बचेगा आर बाई टू। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ उसको, सो आर इक्विवेलेंट जो आएगा मेरा आर बाई टू, तो वो होगा ही। ठीक है, आर बाई टू तो बाहर आ गया। ठीक है, वन प्लस अगर न्यूमरेटर की बात करें, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो वन प्लस अल्फा टू डेल्टा टी, ठीक है, प्लस अल्फा वन डेल्टा टी प्लस अल्फा टू डेल्टा टी स्क्वायर, अल्फा वन अल्फा टू डेल्टा टी स्क्वायर, ये न्यूमरेटर पार्ट हो गया। और डिनोमिनेटर पार्ट को एज इट इज़ रहने देते हैं अभी, अल्फा वन प्लस अल्फा टू बाई टू इंटू डेल्टा टी। वी कैन निगलेक्ट दिस बट लास्ट टर्म को निगलेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि अल्फा वन अल्फा टू आपस खुद में इंडिविजुअली वैल्यूज बहुत छोटी होती है, 10⁻⁻⁻⁶ के रेंज में होता है, तो इनका प्रोडक्ट और छोटा होगा। सो दिस कैन बी निगलेक्टेड। तो यहाँ से जो हमारा एक्सप्रेशन है वो बनकर आया
यहाँ से जो हमारा एक्सप्रेशन है वो बनकर आया आर इक्वलेंट इक्वल टू आर बाई टू तो होगा ही, ठीक है। अल्फा वन प्लस अल्फा टू डेल्टा टी कॉमन हो जाएगा, और उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा वन प्लस अल्फा टू बाई टू डेल्टा टी, ठीक है ना। ये ऊपर जाके यहाँ पावर -1 हो जाएगा, उस -1 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सप्रेशन, और हायर ऑर्डर टर्म को निगलेक्ट कर देंगे तो ये आएगा। अब इसको हम लोग को बस सिंप्लीफाई कर लेना है। सो आर बाई टू तो ये हो गया, ठीक है। 1 हो गया माइनस अल्फा वन प्लस अल्फा टू बाई टू डेल्टा टी, इसको करेंगे तो यहाँ आ जाएगा अल्फा वन प्लस अल्फा टू इंटू डेल्टा टी, ठीक है। और फिर ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो वो अल्फा वन अल्फा टू के प्रोडक्ट्स उसमें आएंगे तो उसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। सो ये बचा इतना। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें, इस पर्टिकुलर को अगर सिंप्लीफाई करें तो आर इक्वलेंट जो होगा दैट इज आर बाई टू, और ये करके आ जाएगा 1 प्लस अल्फा टू बाई टू इंटू डेल्टा टी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर फिर कंपेयर करें तो इक्विवेलेंट जो आया हमारा पैरेलल में वो आर बाई टू, दो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में आर बाई टू ही होता है, आर बाई टू। और ये एक्सप्रेशन को फिर आप अगर गौर से देखें, दिस इज नथिंग बट अल्फा इक्विवेलेंट, ठीक है, कंपेयरिंग विद द पेरेंट इक्वेशन। सो पैरेलल में भी जो अल्फा इक्विवेलेंट आया, अल्फा इक्विवेलेंट जो पैरेलल में भी आया दैट इज इक्वल टू अल्फा वन प्लस अल्फा टू बाई टू। तो सीरीज और पैरेलल दोनों केस में जो है वो अल्फा वन प्लस अल्फा टू बाई टू आ रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। Now, an artillery piece, next question. An artillery piece of mass m1 fires a shell of mass m2 horizontally. Instantaneously after the firing, the ratio of kinetic energy of the artillery and that of the shell is, ठीक है ना। एक मोमेंटम कंजर्वेशन का बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि एक शेल है, एक आर्टिलरी है, और एक शेल फायर किया गया है। आर्टिलरी का मास है m1 और शेल का मास है m2। तो शेल अगर मान लीजिए लेट सपोज v2 वेलोसिटी से आगे बढ़ा है और ये v1 वेलोसिटी से रिकॉइल हुआ है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा गया है, वेरी गुड। तो वी नो दैट कि ये आर्टिलरी है, दिस इज आवर आर्टिलरी, और ये शेल है। सो वी नो दैट कि ड्यूरिंग फायरिंग इंटरनल वेलोसिटीज, इंटरनल फोर्सेस कम्स इनटू पिक्चर, सो मोमेंटम कंजर्व होगा। तो जो मोमेंटम इसकी होगी वही मोमेंटम इसकी होगी, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन में अपोजिट हो गए। सो ऑल्सो वी नो दैट मोमेंटम इज इक्वल टू 2m/ke, ठीक है ना। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रेशियो होता है। तो अगर दोनों का मोमेंटम सेम है, तो वो वाला पार्ट में काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2m1 काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू 2m2 काइनेटिक एनर्जी 2, आर्टिलरी के लिए और शेल के लिए, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर सिंपल हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी 1 बाई काइनेटिक एनर्जी 2 का जो रेशियो होगा दैट विल बी m2 बाई m1, ठीक है ना। तो मास का जो रेशियो, जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होगा दैट विल बी m2 बाई m1, मास ऑफ द शेल अपॉन मास ऑफ द आर्टिलरी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। Now coming to the last question of section A, when a metal surface is illuminated by light of wavelength lambda, the stopping potential is 8 volt. When the same surface is illuminated by light of wavelength 3 lambda, the stopping potential is 2 volt. The threshold wavelength for this surface is, photoelectric effect का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन के ऊपर, ठीक है ना। तो वी नो दैट कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और रिलेशन में अगर हम लोग देखें E V0 बराबर एनर्जी इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन, दिस इज द बेसिक इक्वेशन दैट वी हैव टू यूज इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है ना। E V0 इक्वल टू एनर्जी इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन, ये बेसिक इक्वेशन होता है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के लिए, एमिशन के लिए। सो अब यहाँ से जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, वी विल यूज दीज टू कंडीशंस वन बाई वन। पहले केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल है 8 वोल्ट, तो 8E इज इक्वल टू एनर्जी इंसिडेंट है लैम्डा है, ठीक है, तो hc बाई लैम्डा, ठीक है, -5, इक्वेशन 1। सेकेंड केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया है आपको 2 वोल्ट, तो 2E बराबर hc बाई 3 लैम्डा -5 वर्क फंक्शन, सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को अगर हम लोग माइनस सब्ट्रैक्ट कर दें तो 6E, 8 में से 2 गया, 6E बराबर hc बाई लैम्डा माइनस hc बाई 3 लैम्डा, और वर्क फंक्शन तो कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो जाएगा
इसको अगर ऊपर नीचे 3 में से 3 HC माइनस HC 2 HC बाई 3 लैम्डा, ठीक है ना, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, सो HC बाई लैम्डा की वैल्यू आई 9E, 9 टाइम्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये HC बाई लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब इस HC बाई लैम्डा की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। इट इज़ बेटर टू पुट इन इक्वेशन 1। सो यहाँ पर 9E अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5 की वैल्यू आ जाएगी E। सो वर्क फंक्शन विल बी इक्वल टू E। वर्क फंक्शन की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी E, और वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के टर्म में होता है HC बाई लैम्डा नॉट इक्वल टू E। तो लैम्डा नॉट की वैल्यू हो जाएगी HC बाई E, और HC बाई E की वैल्यू है 9 लैम्डा, ठीक है ना। HC बाई E की वैल्यू यहाँ से है 9 लैम्डा। सो इस पर्टिकुलर केस में जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू है दैट इज नथिंग बट 9 लैम्डा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। So now we have ended our section A. Now we will be entering into section B. So the first question for section B is, an electron moves through a uniform magnetic field B vector equal to B naught I cap plus 2 B naught J cap Tesla. At a particular instant of time, the velocity of electron is u equal to 3 I cap plus 5 J cap meter per second. If the magnetic force acting on the electron is F vector equal to 5 E K cap Newton, where E is the charge of electron, then the value of B naught is, B naught की वैल्यू पूछी गई है। ये बेसिक क्वेश्चन है लॉरेंट्ज फोर्स के ऊपर। वी नो दैट फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन की बात करें, E इंटू वी क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है। E को E रहने देते हैं। V वेलोसिटी दे रखी है 3 I कैप प्लस 2 J कैप, 3 I कैप प्लस 5 J कैप सॉरी क्रॉस, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है B नॉट I कैप प्लस 2 B नॉट J कैप। नाउ वी हैव टू जस्ट सॉल्व दिस क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो E को हम लोग इधर रखते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, 3 I क्रॉस I 0 I J K, तो 3 2 6 B नॉट K कैप, ठीक है, और 5 माइनस 5 B नॉट K कैप। ठीक है ना, ये हो गया। बाकी J क्रॉस J तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपको जाकर E B नॉट K कैप, ठीक है ना। अब अगर हम लोग एक्सप्रेशन को कंपेयर करें E B नॉट K कैप और 5 E K कैप, सो वी कैन इजीली सी दैट द वैल्यू ऑफ B नॉट इज नथिंग बट 5, क्योंकि इस एक्सप्रेशन से हमारा मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ B नॉट इज नथिंग बट 5, तो 5 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है B नॉट। ये जो कोफिशिएंट है दिस इज नथिंग बट 5, ठीक है ना। बहुत बेसिक क्वेश्चन लॉरेंट्ज फोर्स के ऊपर, जस्ट वी हैव टू कैलकुलेट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ V एंड B। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22, second question of section B. A parallel plate capacitor with plate separation 5 mm is charged by a battery. It is found that on introducing a dielectric sheet of thickness 2 mm, while keeping the battery connections intact, the capacitor draws 25% more charge from battery than before. The dielectric constant of the sheet is, ठीक है। कैपेसिटर का क्वेश्चन है along with the dielectric। हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट कि अगर किसी कैपेसिटर, कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका प्लेट सेपरेशन D है और प्लेट एरिया A है, तो इसकी कैपेसिटेंस होती है A एप्सिलॉन नॉट बाई D। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। ये तो बेसिक हम लोग सबको पता है, ठीक है। अब अगर इसमें हम लोग इसी कैपेसिटर में अगर हम लोग एक डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दें, इफ इंसर्ट अ डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल जिसकी थिकनेस लेट सपोज T है, जिसकी थिकनेस लेट सपोज T है, ठीक है, और प्लेट का सेपरेशन D है और इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो जो नया कैपेसिटेंस होता है C डैश दैट विल बी इक्वल टू, जो वो होता है C अपॉन 1 माइनस T अपॉन D प्लस T अपॉन D टाइम्स K। ये एक्सप्रेशन होता है कैपेसिटेंस का, ठीक है, जब डाइलेक्ट्रिक ऑफ शीट ऑफ थिकनेस T इज इंसर्टेड इन द गैप बिटवीन द टू प्लेट्स। यहाँ पर C क्या है, C इज द ओरिजिनल कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, मतलब वैक्यूम वाला, जो इस एक्सप्रेशन से दिया जाएगा। C अपॉन 1 माइनस T अपॉन D, T इज द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, D इज द थिकनेस गैप बिटवीन द प्लेट, T अपॉन D K इज द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो ये एक्सप्रेशन यूज होगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, तो इसलिए एक रिविजन टाइप हो गया फॉर्मूले का। तो अगर हम लोग पहला केस देखें कि एक कैपेसिटर है और उसको बैटरी से कनेक्ट किया गया है, लेट सपोज V वोल्ट की बैटरी है और इसका कैपेसिटेंस है C, तो जो चार्ज इसमें डेवलप होगा दैट इज CV और माइनस CV, इधर प्लस 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 में CV, इधर माइनस 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 CV, ठीक है। अब इसी में क्या किया गया है कि नाउ द सेम सिचुएशन, सेम कैपेसिटर, अब इसके गैप में एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया गया है
बैटरी अभी भी लगी हुई है, सेम बैटरी लगी हुई है, और एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया गया है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया गया है जिसकी थिकनेस है टी, और यहाँ पे गैप है डी, ठीक है ना, थिकनेस है टी और गैप है डी। अब इस केस में अगर कह रहे हैं कि बैटरी लगी हो, इफ द बैटरी रिमेन्स इंटैक्ट देन द कैपेसिटर ड्रॉस 25% मोर चार्ज फ्रॉम द इनिशियल सिचुएशन। तो वो बताना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। लेट सपोज इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ठीक है, तो बहुत सिंपल है, तो इसको यूज करें अगर हम लोग इस सिचुएशन को, तो इस केस में जो चार्ज होगा Q डैश, दैट विल बी न्यू C इंटू वी, C डैश इंटू वी, न्यू कैपेसिटेंस, और न्यू कैपेसिटेंस होगा दैट विल बी C 1 माइनस T अपॉन डी प्लस T अपॉन डी के इंटू वी, ठीक है ना। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज को अगर पुट करें, सी वी 1, सारी वैल्यूज को अगर हम लोग पुट करें तो Q डैश इक्वल टू सी वी रहने देते हैं 1 माइनस, थिकनेस कितना है 2 का, और गैप कितना है 5 का, प्लस 2/5 के, ये हो जाएगा सी वी 3/5 प्लस 2/5 के, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि Q डैश जो है दैट इज ड्रॉइंग 25% मोर चार्ज, 25% मोर चार्ज, मतलब Q डैश जो होगा दैट विल बी 1.25 टाइम्स ऑफ सी वी, तो 1.25 टाइम्स ऑफ सी वी इक्वल टू सी वी अपॉन 3/5 प्लस 2/5 के, सी वी से सी वी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कर देंगे तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा 3/5 प्लस 2/5 के इक्वल टू 100/125 इक्वल टू 4/5, ठीक है ना। तो 2/5 के इक्वल टू 1/5, सो के की वैल्यू 2 आ गई। सो द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द शीट विच वी हैव इंसर्टेड इन द गैप बिटवीन द प्लेट इज 2। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर 2। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23, ये एक नेटवर्क दिया हुआ है जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वी हैव टू कैलकुलेट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें, लेट सपोज यहाँ पर एक बैटरी अगर हम लोग लगा लें, लेट सपोज वी कनेक्ट अ बैटरी, ठीक है, तो ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, ये 0, ये भी 0, ठीक है ना। तो ये 6 ओम का रजिस्टर शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, 6 ओम का रजिस्टर शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। ये 3 और 3 ओम अगर देखें तो ये पैरेलल में है, तो 3 और 3 का इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना 1.5, सॉरी 3 और 3 का इक्विवेलेंट हो जाएगा आपको जाकर 1.5, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए तो ये 3 और 3 पैरेलल में हो गए, और ये दोनों की अगर बात करें तो ये दोनों आपको, ये तो है ही नहीं, तो अब इसको इस तरह से आपका सर्किट बन जाएगा। इस 6 ओम वाले को हटा दिया जाए, ये 2 ओम और ये बैटरी है, ठीक है। तो ये हो गया आपको जाकर 1.5 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम एंड दिस इज ऑल्सो 2 ओम, ठीक है ना। नाउ अब ये ए और बी के बीच में निकालना था, तो ये दोनों फिर पैरेलल में हो गए, दिस एंड दिस रेजिस्टेंस आर अगेन पैरेलल ईच अदर, सो 2 और 2 का जो रेजिस्ट इक्विवेलेंट हो जाएगा 1। सो अब जो हमारा सर्किट बना ये 1 ओम का है, ये 1.5 ओम का है, और ये 2 ओम का है। तो 2 और 1 सीरीज में हो गए, तो ये 3 ओम और 1.5 ओम आपस में कनेक्टेड हैं, ये 3 ओम और ये 1.5 ओम आपस में कनेक्टेड है इस बैटरी के अक्रॉस, ये 1.5 ओम है और ये 3 ओम है, ठीक है ना। तो 3 और 1.5 को जो इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी 1 ओम, पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट विल बी 3 इंटू 1.5/4.5, दिस इज इक्वल टू 1 ओम, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है 1। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24,
A solid circular disk of mass 50 kg rolls along a horizontal floor so that its center of mass has a speed of 0.4 meter per second. The absolute value of work done on the disk to stop it is. ये pure rolling का question है from the rotation chapter. ठीक है, translational plus rotational kinetic energy इसमें use होगी. तो let's suppose कि अगर एक हमारा एक horizontal surface है, let's suppose this is our horizontal surface, और उस पे एक डिस्क रोल कर रहा है, उस पे एक डिस्क रोल कर रहा है जिसका मास दे रखा है 50 केजी, इसका मास है 50 केजी, ये दिया हुआ है, ठीक है. और सेंटर ऑफ मास, द सेंटर ऑफ मास इज मूविंग, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क इज मूविंग विथ वेलोसिटी VCM इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस रिजिड बॉडी इज सॉलिड डिस्क. ठीक है, इसके रेडियस लेट सपोज R है, ठीक है, लेट सपोज द रेडियस इज R. So total kinetic energy of this disk during rolling will be kinetic energy of translational plus kinetic energy rotational. ठीक है, so translational kinetic energy will be half mVCM square and rotational will be half ICM omega square. ठीक है ना, तो ये हो जाएगा half mVCM square plus half, this will be half m R स्क्वायर. डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर मास एक्सिस के अबाउट होता है दैट इज हाफ mr स्क्वायर. ठीक है, और ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं VCM स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. सो R स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट. सो हाफ mVCM स्क्वायर प्लस 1/4 mVCM स्क्वायर. ठीक है ना, तो फाइनल आया हाफ mVCM स्क्वायर प्लस 1/4 mVCM स्क्वायर. तो ये फाइनली बन के आ जाएगा आपका 3/4 mVCM स्क्वायर. जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी 3/4 mVCM स्क्वायर. ठीक है, अगर सारी वैल्यूज को हम लोग पुट कर दें, सो 3/4 मास है 50 kg एंड इट इज रोलिंग विद 0.4 मीटर पर सेकेंड. सो 0.4 इंटू 0.4. ठीक है ना, तो यहाँ 10 कर दिया जाए, यहाँ 10 कर दिया जाए, ये 0 हट गया, यहाँ से 0 हट गया. 10 10 ज़ा 100, 50, 2 2 ज़ा 4, 4 4, 3 2 ज़ा 6. तो 6 जूल की जो टोटल एनर्जी इसमें स्टोर है. नाउ वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 क्योंकि डिस्क रुक जा रही है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टोटल है 6 जूल, जो चेंज होगा -6 का. सो वर्क डन अगेंस्ट द बोला है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वर्क डन ऑन द डिस्क. सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वर्क डन विल बी इक्वल टू 6 जूल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 6. Now coming to question number 25. A body starts falling freely from a height h, hits an inclined plane in its path at a height small h. As a result of this perfectly elastic impact, the direction of velocity of the ball becomes horizontal. The value of h by h for which the body will take the maximum time to reach the ground is. एक inclined plane है, ठीक है, और एक इंक्लाइन प्लेन है और एक बॉल को ड्रॉप किया गया. बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट h. कैपिटल H यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया गया है. नाउ दिस बॉल हिट्स द इंक्लाइन प्लेन एट सम पॉइंट हियर, और इस पॉइंट का जो एलिवेशन है, इस पॉइंट का जो एलिवेशन है वो स्मॉल h है. ठीक है ना. After impact, it is said in the question कि after impact the velocity becomes horizontal. velocity बॉल की horizontal हो जा रही है. ठीक है, तो पूछा गया है कि h by h का रेशियो क्या हो कि it takes maximum time to reach the ground. ग्राउंड को रीच करने में इसको मैक्सिमम टाइम लगे, मतलब टोटल टाइम. दिस टाइम अगर ये t1 मान लूँ और यहाँ से यहाँ आने का टाइम को t2 मान लूँ, सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी t1 प्लस t2. ठीक है ना. तो टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर बात करें, t1 की बात करें, तो √2, ये हाइट डिफरेंस कितना है, h माइनस एच बाई जी. सो t1 का एक्सप्रेशन हो गया √2h माइनस एच बाई जी, प्लस t2 का एक्सप्रेशन हो जाएगा इसके लिए, तो ये हाइट h स्मॉल h ही है, तो √2h बाई जी. नाउ सोचने वाली बात यह है कि ये हाइट फिक्स है, कैपिटल H इज फिक्स्ड, कैपिटल H फिक्स है. अगर हम इसको
स्लाइड करवाएं, अगर बॉल को और आगे से गिराएं, देन इट विल हिट सम एट पॉइंट समवेयर हियर, ये बॉल्स यहाँ पर कहीं हिट करेगा. सो अब दिस स्मॉल एच वैल्यू विल चेंज. अगर और आगे से गिराएं, so again this height will change. So small h is variable but capital H is fixed. So accordingly h by h ratio will change. So question में पूछा गया कि h by h ratio क्या हो कि maximum time हो, ठीक है ना. तो इस कैपिटल H को फिक्स रखते हुए h को वेरी कराना है. So ये टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन है टोटल. अब मैक्सिमम करने के लिए वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन एंड गेट द आंसर. सो अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें डी टी एफ बाई डी एच, तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो √2/g तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, ठीक है. इसका 1/2√h - h हो जाएगा, और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 h - h के अंदर को प्लस, सॉरी ये रूट भी है, फिर √2/g बार √h का 1/2√h, ठीक है. तो अगर नाउ डी टी एफ बाई डी एच को अगर हम लोग 0 पुट कर दे, इफ यू पुट दिस एक्सप्रेशन टू 0, सो 2/√2/g सब कुछ चला जाएगा 0 में. व्हाट वी विल बी लेफ्ट विथ h - h इक्वल टू h, ये एक्सप्रेशन बचेगा. सो h बराबर 2h, तो h बाई h का एक्सप्रेशन आ जाएगा 2. सो मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट होने के लिए, मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट होने के लिए जो h बाई h का रेशियो है वो कितना होना चाहिए, 2. Now coming to question number 26, two waves of intensity 1:9 cross each other at a point. The resultant intensities at the point when waves are incoherent is I1. ठीक है, जब incoherent है तो I1 है, और जब waves are coherent है तो resultant I2 है with phase difference 60 degree. If I1 by I2 equal to 10 by x, then x is. ये वेव अकाउस्टिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है. इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स के ऊपर इंटेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना. तो मान लेते हैं लेट दो सोर्स हैं और दोनों सोर्स से वेव निकल रही हैं और ये पॉइंट पर आके इंटरफेयर किया है, पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस. दिस इज वेव ए, दिस इज वेव बी, ठीक है. इसकी इंटेंसिटी आई ए है, इसकी इंटेंसिटी आई बी है, और ये पॉइंट पी पर इंटरफेरेंस हो रहा है, ये पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस है. अच्छा, अब केस दो केस में है इनकोहेरेंट. पहला कहा गया है इनकोहेरेंट, अगर वेव इनकोहेरेंट हैं तो, ठीक है ना. तो अगर इनकोहेरेंट है तो आई रिजल्टेंट विल बी सिंपली आई ए प्लस आई बी. अच्छा, क्वेश्चन में रेशो दे रखा है 1:9 का, तो आई ए बाई आई बी जो है वो 1/9 है. ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है. तो यहाँ से अगर हम लोग आई बी को 9 टाइम्स आई ए लिख दे तो ये 10 टाइम्स आई ए हो जाएगा, ठीक है ना. तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं. ये इनकोहेरेंट के लिए कंडीशन है, वो सिंपल सम हो जाएगा. अब अगर कोहेरेंट की बात करें, सेकेंड केस की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट कोहेरेंट वेव्स, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है ना. अगर कोहेरेंट की बात करें, जो केस बी है हमारा, कोहेरेंट में जो आई रिजल्टेंट होगा दैट विल बी आई ए प्लस आई बी प्लस 2√IA/IB cos 60 डिग्री, ठीक है ना. तो ये आई ए प्लस आई बी प्लस 2√IA/IB हो जाएगा. अब जहाँ जहाँ पे आई बी है वहाँ वहाँ 9 टाइम्स आई ए रख देते हैं, तो ये 10IA प्लस आई बी के जगह 9 टाइम्स आई ए रखेंगे तो 9IA², 3 2 आई बी की जगह, हाँ ये 2 से तो 2 कैंसिल हो चुका है cos 1/2 का, ठीक है. तो ये सिंपली बचेगा 3IA और ये हो जाएगा आई बी इक्वल टू 9IA 9 10 और आई बी इक्वल टू 9IA 3 10 13IA, 13 टाइम्स आई ए, ठीक है ना. तो वो है 10 टाइम्स आई ए, ये है 13 टाइम्स आई ए. अब क्वेश्चन में I1/I2 मतलब आई रिजल्टेंट की बात की जा रही है. सो I1/I2 की अगर बात की जा रही है मतलब कि पहले कोहेरेंट अपॉन इनकोहेरेंट अपॉन कोहेरेंट का बात किया जा रहा है. तो इनकोहेरेंट का एक्सप्रेशन है 10IA और इसका एक्सप्रेशन है 13IA, तो ये 10/13 हो जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको गौर से देखें, इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को जो क्वेश्चन में दिया गया है, टेन बाई एक्स, तो x की वैल्यू अगर कंपेयर करें तो दिस इज नथिंग बट 13, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी 13. Now coming to question number 27. Now coming to question number 27. A small square loop of wire of side small l placed inside a large square loop of wire of side capital L, L equal to L square. The loops are coplanar and their centers coincide. The value of mutual inductance of the system is root x into 10 raised to the power minus 7 hertz Henry, where x equal to. म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्वेश्चन है, दो कोप्लेनर कॉइल की बात की जा रही है, शेप स्क्वायर है लूप का, ठीक है ना. तो लेट्स ड्रॉ अ स्कीमेटिक ऑफ द डायग्राम. अगर मान लीजिए ये बड़े वाला स्क्वायर है, लेट्स सपोज दिस इज अ लार्जर स्क्वायर, और इसके सेंटर पर एक छोटा सा स्क्वायर रखा गया है, ठीक है, जिसकी साइड है स्मॉल एल और इसका साइड है कैपिटल एल, और L और L में रिलेशन दे रखा है कि L इज इक्वल टू L स्क्वायर. वी विल बी यूजिंग दिस रिलेशन, ठीक है. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का सबसे पहला काम होता है कि वी हैव टू डिसाइड आउट ऑफ द टू कॉइल विच कॉइल इज टू बी टेकन एज प्राइमरी एंड विच इज टू बी टेकन एज सेकेंडरी. तो क्वाइट ऑब्वियस है कि बाहर वाले को प्राइमरी कॉइल मानेंगे क्योंकि अंदर का कॉइल का लेंथ छोटा है काफ़ी. तो जो मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे बाहर वाले कॉइल की वजह से बनेगा वो अंदर पर उसको हम लोग यूनिफॉर्म मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं. वी कैन अज्यूम इट टू बी कांस्टेंट, मतलब इस पूरे एरिया में हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं, तभी हम लोग फ्लक्स निकाल पाएंगे. तो मान लेते हैं यहाँ पर करंट आई है प्राइमरी में, ये सब में आई फ्लो करेगा, ये आई फ्लो करेगा, ये आई फ्लो करेगा, ठीक है. तो अब हम लोग ये वाला रिजल्ट हमें यूज़ करना है कि अगर मान लीजिए कि किसी स्क्वायर के चारों तरफ में कोई करंट फ्लो कर रहा है आई, कोई स्क्वायर लूप के चारों तरफ करंट फ्लो कर रहा है आई, और सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. सो वी विल बी ज्वाइनिंग दिस डायगोनल्स, और ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना. तो सेंटर से अगर हमको फील्ड निकालना है चारों वायर की वजह से, ले दिस इज सेंटर. सो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज, अगर इसकी साइड लेंथ लेट सपोज d है, तो ये डिस्टेंस d/2 हो जाता है सेंटर से वायर का. सभी वायर से ये सेंटर d/2 डिस्टेंस पर है, ठीक है. और ये जो एंगल है, दिस एंगल, ये जो एंगल की बात हो रही है, दिस एंगल इज 45 डिग्री, और ये भी एंगल है 45 डिग्री. तो जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है दैट इज μ0I अपॉन 4πd साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री. ये एक्सप्रेशन हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर ऑफ द स्क्वायर पर किसी एक सेगमेंट के वजह से. तो अगर हम लोग पाम रूल यूज़ करें तो सब सारा फील्ड अंदर के डायरेक्शन में होगा, इसके वजह से भी अंदर है, इसकी वजह से भी अंदर है, यहाँ पे करंट ऐसे चला गया है तो अभी भी अंदर है, यहाँ भी अंदर है. तो चारों सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर सम हो जाएगा, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल बी गेटिंग द नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना. तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग यूज़ करेंगे. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर, अगर ये पॉइंट P सेंटर मान लूँ, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पर बनेगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पर बनेगा वो बनेगा B इक्वल टू μ0I अपॉन 4π. डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कैपिटल L/2, ठीक है ना. कैपिटल L/2 ये डिस्टेंस हो गया, इनटू साइन 45 डिग्री इंटू 2 हो जाएगा क्योंकि एक और ऐड होगा, और इंटू 4 क्यों, क्योंकि चारों वायर की वजह से निकालना है. सो 4π से 4 से 4 कैंसिल, और 1 2 से 4 ये हो जाएगा साइन 45 1/√2 2√2 μ0I अपॉन πL. ये मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पर. अब मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पर निकला है वो हम लोग अज्यूम करेंगे कि इस छोटे वाले एरिया के अक्रॉस यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना. इसीलिए उसको प्राइमरी कॉइल माना गया है. तो ये एक्सप्रेशन है मैग्नेटिक फील्ड का, इसको यहाँ रख देते हैं, यूज़ करेंगे, ठीक है. तो दिस इज B at P. Now flux associate, this is let's suppose this is coil 1 and this is coil 2. So flux associated with coil 2 will be equal to mutual inductance into current in coil 1, ठीक है ना. अब फ्लक्स एसोसिएटेड कॉइल 2, कॉइल 2 में जो फ्लक्स होगा दैट इज नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ कॉइल 2,
ठीक है, MI1, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल, टू रूट टू म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल, ठीक है, और एरिया हो जाएगा स्मॉल एल स्क्वायर, म्यूचुअल डिस्टेंस एम, करंट आई से आई कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर और कैपिटल एल कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एल बराबर एल स्क्वायर दिया हुआ है, म्यू नॉट हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 और ये हो जाएगा 8 इंटू 8√2 और ये पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से जो एक्सप्रेशन आएगा, यहाँ पे 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 रखेंगे, नीचे से नीचे पाई कैंसिल हो जाएगा, 8√2। तो 8√2 एम की जो वैल्यू आएगी यहाँ से होल से, m इक्वल टू 8√2 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -7 हेनरी, 8 को अंदर ले जाएंगे तो 128 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -7 हेनरी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा 128 इफ यू कंपेयर विद दिस रिजल्ट। Now coming to question number 28, the depth below the surface of sea to which a rubber ball be taken so as to decrease its volume by 0.02% is how much, this meter। डेप्थ ऑफ ओशन पूछा गया है, एक ओशन है, ठीक है ना, उसकी डेप्थ पूछी गई, उसकी गहराई पूछी गई है कि हाउ मच डीप दैट ओशन शुड बी, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग 1 मान लें, यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग 2 मान लें, ठीक है, बल्क मॉडुलस इसका दे रखा है ओशन वाटर का, बल्क मॉडुलस ऑफ रबर, बल्क मॉडुलस ऑफ एक रबर का बॉल है, ठीक है, इसका बल्क मॉडुलस दिया हुआ है k इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस पे प्रेशर लगेगा चारों तरफ से, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ओशन वाटर की वजह से, ठीक है, और इसके वॉल्यूम में कंप्रेशन होगा। सो तो डेल्टा P विल बी इक्वल टू P2 माइनस P1 और ये हो जाएगा रो जी एच, जहाँ पर h है क्या, डेप्थ ऑफ ओशन, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस का जो बेसिक डेफिनेशन है k बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाई V, ठीक है ना। तो जो डेल्टा P है दैट विल बी k इंटू डेल्टा V बाई V, ठीक है। अब इसी को हम लोग को यूज़ कर लेना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो बल्क मॉडुलस का बेसिक डिफिनेशन ये होता है डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है ना। तो चेंज इन प्रेशर जो सफ़र होगा 1 और 2 के बीच में, मतलब फ्री सरफेस और बॉटम सरफेस के बीच में, दैट विल बी गिवन बाय द हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन P2 माइनस P1 इक्वल टू रो जी एच। तो डेल्टा P जो है वो रो जी एच के बराबर है, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में अगर हम लोग लिखें इसको यहाँ पर, रो जी एच इज इक्वल टू k डेल्टा V बाई V, तो h विल बी k अपॉन रो जी इंटू डेल्टा V बाई V, ठीक है, सिंपल है। अब सारी वैल्यूज़ को हमें पुट करके हमको h की वैल्यू निकाल लेनी है। तो k जो है दैट इज़ 9 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 8, ये 10 का पावर 3 है डेंसिटी, g की वैल्यू है 10। अच्छा, क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज दे रखा है 0.02% का, ठीक है ना। तो परसेंटेज चेंज क्या होता है, डेल्टा V बाई V को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 बाई 100 आना चाहिए, तो 0.02 बाई 100, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लेना है। तो अब सॉल्व अगर करें तो 3 एक 10 का पावर 4 प्लस 2 6 8 900 ऊपर हो गया, ऊपर हो गया 900 इंटू 2 बाई 100, तो आंसर है 18। तो 18 मीटर के डेप्थ पर अगर हम लोग जाएं तो हमें वॉल्यूमेट्रिक फ्रैक्शनल वॉल्यूमेट्रिक डिक्रीज जो मिलेगा दैट विल बी 0.02%। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 29, अ पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड a, its speed increased to 3 times at an instant when its displacement is 2a by 3. The new amplitude of motion is n times a by 3, the value of n is। ये सिंपल हार्मोनिक क्वेश्चन का बेसिक क्वेश्चन है, लीनियर एसएचएम का क्वेश्चन है, 2 केसेस में बन रहे हैं, मतलब थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने का प्रॉब्लम था ये, ठीक है। एक पार्टिकल है वो एसएचएम कर रहा है 2 केस में, ठीक है। एक में एम्पलीट्यूड लेट सपोज -a और +a,0 है, एक केस में एम्पलीट्यूड +a,0 है, ठीक है। पार्टिकल एसएचएम कर रहा है लेट सपोज अबाउट ओरिजिन, ठीक है।
और दूसरे केस में माइनस ए डैश कॉमा ज़ीरो और प्लस ए डैश कॉमा ज़ीरो, एम्पलीट्यूड चेंज कर दिया है। ठीक है, क्यों कर दिया बताएंगे अभी। ये मेन पोजीशन है, लेट सपोज 0 0। अब क्वेश्चन में कहा गया है पहले केस में कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जब 2a/3 है, लेट सपोज मीन पोजीशन से ये 2a/3 है, तो इसकी स्पीड जो है लेट सपोज v है। ठीक है, अब उतने ही डिस्प्लेसमेंट पे सेकेंड केस में, उतने ही डिस्प्लेसमेंट पे सेकेंड केस में इसकी स्पीड 3v हो गई है, 3 टाइम्स v। ठीक है ना, 3 टाइम्स। तो पूछा गया है कि नया एम्पलीट्यूड क्या होगा, मतलब कुछ ऐसा डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया हमने सिस्टम के साथ कि उतने डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी पहले का 3 गुना हो गया है। तो बताई जा रही है कि नया एम्पलीट्यूड क्या होगा। भाई ज़्यादा एम्पलीट्यूड तो एनर्जी पे डिपेंड करता है, आप इनिशियल मोमेंट पे जितनी एनर्जी दोगे ब्लॉक उतना ही दूर जाएगा। ठीक है, तो ये दो सिचुएशन को हमको कंपेयर करना है। तो अगर हम यहाँ लिखें एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसकी कॉमन मान लेंगे, क्योंकि ओमेगा बराबर हम लोग जानते हैं √k/m होता है एसएचएम में। तो पार्टिकल का मास चेंज नहीं किया है और जिस फोर्स के वजह से वो एसएचएम में था उसका फोर्स कांस्टेंट भी सेम है, तो दोनों के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होगी। तो एक रिलेशन होता है v = ओमेगा इंटू √a² - x²। ठीक है, v को v रहने देते हैं, ओमेगा a² माइनस x की वैल्यू दे रखी है 2a/3, तो 4a² / 9 हो जाएगा। ठीक है ना, 9 - 4 5, √5a ओमेगा/3, √5a ओमेगा/3। ठीक है ना, √5a ओमेगा/3, दिस इज द एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर अगर देखें सेम, तो अब स्पीड हो गई है 3v ओमेगा √a' माइनस 4a² / 9। ठीक है, 4a² / 9 ये आपका एक्सप्रेशन है एन ए के टर्म में। ठीक है ना, तो अब यहाँ से अगर हम लोग उसको वो करें, v बराबर इतना 5a, इसका अगर v की जगह हम लोग जिस वैल्यू को रख दें तो 3√5a ओमेगा/3, 3√5 बराबर है ओमेगा इंटू √a' माइनस 4a² / 9। ठीक है, ये कहानी है। तो अगर इसको किया जाए तो यहाँ से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, √5a विल बी इक्वल टू √a' माइनस 4a² / 9। दोनों तरफ स्क्वायर लें, 5a² बराबर a' माइनस 4a² / 9। इसको यहाँ रखें तो 5a² प्लस 4a² / 9 इज इक्वल टू a'²। और ये 9 5 45, 45 प्लस 4 49, तो 49a² / 9 इक्वल टू a। तो फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगा दैट इज 49a² / 9 इक्वल टू a'²। अब अगर स्क्वायर रूट लें तो 7/3a, a' इक्वल टू 7a/3। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें na/3 का एक्सप्रेशन है, तो n की वैल्यू जो क्वाइट नेचुरल यहाँ से दिख रही है दैट इज नथिंग बट 7। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 7। Now coming to last question of section B. The mass defect in a particular reaction is 0.4 kg. The amount of energy liberated is n into 10⁻⁷ kWh, where n equals to। तो ये रेडियो न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है, न्यूक्लियाई चैप्टर का। ठीक है, मास डिफेक्ट के ऊपर प्रेजेंट है। तो हम लोग जानते हैं एनर्जी बराबर होता है Δmc²। डेल्टा एम इज द मास डिफेक्ट। डेल्टा एम दे रखा है 0.4 kg, मीन्स 10⁻³ किलोग्राम, और c की वैल्यू है 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 0.4 10⁻³ इंटू 9 × 10⁻16। सो यहाँ से 9 4 36,
ठीक है, 3.6 हो गया इंटू 10 का पावर 13, 3.6 इंटू 10 का पावर 13, इतना तो ये जूल हुआ, ठीक है ना। अब इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 3.6 इंटू 10 का पावर 13। 1 किलोवाट आवर की अगर बात करें, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 इंटू 3600, विच इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6, ठीक है ना। तो यहाँ से 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 किलोवाट आवर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये फाइनली आएगा आपका 10 का पावर 7 किलोवाट आवर, विच इज़ नथिंग बट 1 इंटू। तो अगर n से कंपेयर करें, सो हेयर आंसर शुड बी 1। सो इट्स पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है 1। सो थ्रू दिस क्वेश्चन आई कम टू एन एंड ऑफ आवर टुडेज सेशन, ठीक है ना। So in this video, as you already have seen, that I have been solving the JEE Main 2024 physics paper that was conducted on 31st of January. So I hope that you all have seen that the detailed solution. I try to explain the questions in a very detailed manner so that you can have a check on what we have done on the day of exam. So students, in the next video, I will be coming with another paper of that was conducted on 1st February morning shift for the physics paper. So till then, thank you.